Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting the practical portion of the subject general histology and general veterinary histology. So we will discuss today about the microscope. It's a combination of two words, that is the micro and scopy. Micro means very small, means tiny, and scope means to examine something, to observe something. Means that is an optical instrument that can be used to see the very tiny organisms or very tiny objects. So, talking about the definition, it is an instrument that helps to enlarge minute organisms or their parts. Means microscope is such an optical instrument that can be used to view the very small or tiny objects that make it enlarge. It enlarges something. Actually, the object does not enlarge physically, but we can get imaginary image that are very large and we can see through it. Means it magnifies the image of that object which is under observation. The second definition is a microscope is highly precision optical instrument that uses a lens or a combination of lens that is designed to enlarge the image and take final detail visible. Means it's a very comprehensive definition that a microscope is such an instrument that gives a very detailed image of an object that is under observation. And it can be found by either a simple lens, means one lens can be used, or a combination of lens can be used. If one lens is used in the microscope, then it is called as the simple microscope, and if there are a combination of lenses that are used in the microscope, we call them as a compound microscope. Some microscope can magnify an object 30 means 3000 times than original size. Now what's microscopy? The use of microscope for investigation by a microscope is called as microscopy. Means that process, when we are using a microscope to view something under it, then this process is called as the microscopy. Now there are some terms that are used in the microscopy, and these are very important to learn about these terms. First is magnification. Magnification means to enlarge something. It is the property of microscope that how it can enlarge the image of an object. एक ऑब्जेक्ट का जो है इमेज अगर हम देखना चाहते हैं तो वो कितनी हद तक जो है उसको बड़ा करके हमें दिखाता है एक माइक्रोस्कोप. तो उस टर्म के उसके लिए हम स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. इसकी मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ है जो कि आप उसको नेक्ड आई से देखना चाहते हैं, तो जब आप उसको आंखों के करीब लेके आते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है. आप उसको मतलब है कि ईज़िली वो विजिबल होती है आपके लिए. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या उसके लिए हम टर्म्स क्या यूज़ करते हैं, मैग्निफिकेशन. एक्चुअली दिस मैग्निफिकेशन डज नॉट इंक्रीज द रियल ऑब्जेक्ट फिजिकली. किसी ऑब्जेक्ट को फिजिकली वो इंक्रीज नहीं करता, लेकिन आपको वो इमेज बड़ा करके दिखाता है. तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्या, मैग्निफिकेशन. The process of enlarging specimen only in appearance, not in physical size, is called as magnification. Or it also refers the time of object can be enlarged. ये माइक्रोस्कोप की एक क्वालिटी है कि वो कितने टाइम्स आपको जो है एक ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा करके दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन. और it is the ratio of the size of an image to that of ऑब्जेक्ट. यानी एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज के दरमियान जो रेशो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. सेकेंड वन इज द रेजोल्यूशन.
and we can get the magnification of a microscope by multiplying the ocular lens with the objective lens. एक माइक्रोस्कोप की अगर हम मैग्नीफिकेशन बताते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जिसको हम जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, एक स्लाइड हम रखते हैं, जब वो उसको हम किस मतलब है कि लेंस से देखते हैं, लेंस की अपनी पावर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल 10x वगैरह, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ऑकुलर लेंस होता है उसकी जो पावर है और उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, तो जो हमारे पास इमेज बनता है तो वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है, फॉर एग्जांपल हम ऑकुलर जो हमारे पास है वो 10x की है और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो 4x की है, पावर की है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब कोई चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो किस मैग्नीफिकेशन पे हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, 40x पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑकुलर लेंस जो है वो 10x की है और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमारे पास भी वो 10x का है, तो हमारे पास टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होगी उसकी 100x पे वो चीज़ हम देख रहे होते हैं। इस तरह 40 की भी है, 40x के ऑब्जेक्टिव लेंस आती है, या अगर उस पे देख रहे हैं ऑकुलर 10 की होती है अमूमन, तो हमारे पास वो कौन सी मैग्नीफिकेशन पे देख रहे होते हैं, 400x पे उसको देख रहे होते हैं। Second one is the resolution. It is the another quality of the microscope that it can differentiate the two objects that are lying too close together, and how much the microscope give us the visible detail of an object. जिस तरह मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है जिसको हम नेक्ड आई से थ्रू इजीली देख सकते हैं, उसको अगर हम आई के करीब उसको लेके आते हैं वो चीज़ साइज़ में बड़ी हो जाती है, साइज़ में बड़ी हो जाती है ना, लेकिन अगर हम किसी हद तक उसको आंखों के इतना करीब ले आए तो हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, उसकी मैग्नीफिकेशन बढ़ गई लेकिन रिजोल्यूशन जो है वो हमारी ख़त्म हो रही है, क्लियर कट डिटेल्स हमें नज़र नहीं आ रही। मैग्नीफिकेशन हमारे पास ठीक है, चीज़ जो है बड़ी हो गई, हम बड़ी दिखाई देती है, लेकिन हमारी रिजोल्यूशन जो है वो कमज़ोर है। ठीक है, तो इसमें यही फ़र्क है, आप इसको इस तरह सीख लें। तो अगर हम उसको रिजोल्यूशन हमें क्या करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एक ऑब्जेक्ट उठाते हैं, उसके अंदर या स्लाइड देखते हैं, स्लाइड के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो कि दे आर लाइंग टू क्लोज टुगेदर। तो रिजोल्यूशन हमें क्या सिखाता है, रिजोल्यूशन हमें ये बताता है कि ये 2 पॉइंट्स कितने हमारे एक दूसरे के करीब हैं, या जो है हम उसकी कितनी क्लियर कट डिटेल देख सकते हैं, तो इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ हम अपनी नेक्ड आई से हम देखते हैं वो हमारे आंखों के करीब आ गई, तो वो मैग्नीफिकेशन उसकी बढ़ गई, हम मज़ीद उसको नहीं देख सकते। लेकिन रेजोल्यूशन जो है हमें क्या दिखाता है, अगर क्लियर कट डिटेल्स हमें उसकी नज़र आ रही हैं तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन है। माइक्रोस्कोप हमें क्या करता है, उसमें दोनों क्वालिटी होती है, वो मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाई भी करता है और रेजोल्यूशन भी उसकी सही कर देता है ताकि हमें क्लियर कट डिटेल उसकी आ जाए। The shortest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished by observer. ठीक है, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो बड़ा कम डिस्टेंस होता है उसको अगर क्लियर कट एक माइक्रोस्कोप आपको दिखाता है तो माइक्रोस्कोप की ये पावर, ये क्वालिटी हमें क्या कहलाती है, हम उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। It refers to the ability of an optical system to reveal details and pattern clearly. हमें किसी चीज़ की जो है कंप्लीट डिटेल देता है और उसका पैटर्न हमें बताता है। Resolving power is the measure of capacity of a microscope to separate 2 objects lying close to one another. ये सारी उसकी डिफिनीशंस की कैटेगरी में आते हैं। It's the quality of microscope depends upon the resolution of microscope, यानी किसी माइक्रोस्कोप की जो क्वालिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रिजोल्यूशन पे डिपेंड करती है कि वो आपको कितना क्लियर कट जो है वो इमेज दिखाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। थर्ड जो क्वालिटी है माइक्रोस्कोप की, दैट इज कंट्रास्ट। हम कंट्रास्ट जनरल यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि
ये एक रिलेटिव टर्म है, यानी किसी चीज़ के जब आप क्लियर कट उसको देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड के साथ कोई ख़ास रिलेशन होता है। ठीक है ना। आप लोग जब कपड़े पहनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैंने कंट्रास्ट में कपड़े पहने, ठीक है। कंट्रास्ट में पहनने का मतलब क्या है कि वो विजिबल हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है। तो एक का जो इम्प्रेशन है एक कलर का दूसरे कलर के इम्प्रेशन को वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंट्रास्ट है। माइक्रोस्कोप में भी यही क्वालिटी है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी टिश्यूज़ वगैरह को देखते हैं, तो उसका अपना एक बैकग्राउंड भी होता है, सराउंडिंग एरिया भी होता है। एक तो वो लाइट जो कि उस टिश्यू में से गुजरती है, और एक वो जो उसके अपने बैकग्राउंड में से, सराउंडिंग में से जो लाइट वगैरह होती है, तो उसका भी अपना एक, इन दोनों के दरमियान एक ख़ास रिलेशनशिप होता है। जितना ये कंट्रास्ट ज़्यादा होगा उतना आपको जो है इमेज क्लियर कट नज़र आएगा। तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड इज कंट्रास्ट। डार्कनेस ऑफ द बैकग्राउंड रिलेटिव टू द स्पेसिमेन, इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रास्ट कहते हैं। द डिफरेंस इन लाइट इंटेंसिटी बिटवीन द इमेज एंड द एडजेसेंट बैकग्राउंड रिलेटिव टू द ओवरऑल बैकग्राउंड इंटेंसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि दिस वन इज़ द कंट्रास्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो है उसके बैकग्राउंड के हवाले से जो होगा जो इमेज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रास्ट कहते हैं। अब फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एंटोन वॉन लीeuwenhoek. This microscope consists of basically a simple window that consists of a simple glass. उसने एक विंडो में एक ग्लास लगाई थी, उस ग्लास के पिछली साइड पे वो चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करता था, जिसके बेस पे उस वो एक माइक्रोस्कोप की बुनियाद बनी कि उस विंडो में एक बाकायदा शीशा लगा हुआ था, लेंस लगा हुआ था, तो उस लेंस से जो है वो दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। वो इसके लिए एक बेस बन गई, तो उसको उन्होंने नाम दिया कि दैट वन इज़ दी microscope. This was a simple microscope because it only consisted of just one lens. Now parts of microscope, basically microscope consists of various types of parts. First one is the ocular lens or the eyepiece. As the name indicates, ocular. Some terms you must know about these terms. These are regularly used in medical terminologies. Ocular lens. Ocular lens. Ocular means eye. When someone is talking about the ocular, you must reach to the point that he is asking about the eyes related something. जब कोई ocular से बात कर रहा है, मीन्स ocular के मुतालिक कुछ कह रहा है, तो आपका जहन फ़ौरन आइज़ की तरफ जाना चाहिए कि आई के मुतालिक कुछ बता रहा है, ठीक है। तो ocular लेंस क्या है, वो लेंस जो डायरेक्टली जिसके थ्रू आप अपने आइज़ से देखते हैं, वो लेंस जो आपकी आई के बिल्कुल करीब होती है, जब आप किसी माइक्रोस्कोप में से देख रहे होते हैं, तो उसको हम लेंस को क्या कहते हैं, ऑकुलर लेंस कहते हैं। उसके ऊपर अपनी पावर लिखी होती है, जिस तरह इसके लिखी हुई है, वेयर यू लुक टू सी द इमेज ऑफ एन स्पेसिमेन। दीज आर यूजुअली 10x और 15x, डिफरेंट पावर्स के आते हैं, बट यूजुअली दे आर 10x पावर। Body tube, it connects the eyepiece to the objective lens. Arm is that part that supports the tube stage and connects it to the base. This one is the arm of this microscope. It gives support to the base and the objective lens. It also connects the ocular lens with the objective lens and give its support to the base. Stage is that part of the microscope where we put some slides to see the tissues, to see some sections or specimens. So slides are kept there
coarse adjustment screw or knob. These are usually little bit better, greater in size. It helps to increase the distance between the stage or the objective lenses. These one. Fine adjustment screw, when the distance between the objective lens and the specimen is fit, but there are some differences in the vision of different people. So to fix this issue, there are small types of knobs that are present on the coarse adjustment knobs. This one, this small one. Through this we can adjust our eye views. आई जो आपका विजन है उसके मुताबिक अपने आप को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का जो है आई साइट बराबर नहीं होता, तो उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. तो बेस एट द बॉटम ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज़ यूज्ड फॉर सपोर्ट. सपोर्ट के लिए जो हमारे पास है इसका एक बेस होता है. दिस वन, दिस इज कॉल्ड इज द बेस. Resolving nose piece. Resolving nose piece basically consists of various types of lenses that are present here. You can see where types of different types of lenses are present on the nose piece. This one is called as the nose piece. It usually holds 3 to 4 objective lenses. And these objective lenses, these are aids to magnification. Usually we will find 3 or 4 objective lenses on a microscope, and these are of different powers like the 4x, 10x, 40x and 100x, and these are color coded. Through color we can also differentiate between these objective lenses. There are some colors that are present on these objectives. Through these colors we can differentiate the various types of, and these are internationally recognized colors. As we already discussed about the magnification, that magnification is obtained by multiplying the objective lens power with the ocular lens power. Stage clips. There are small clips like structure that are present on this stage of the microscope, and it holds the microscopic slides. If the microscope contains a mechanical stage, through this stage we can move the stage up and down, and also in the right to left, means x-axis and y-axis we can move the stage. Diaphragm. Diaphragm is a aperture-like structure that controls the light of that microscope. Diaphragm क्या होता है? Diaphragm एक aperture-like structure होता है जो कि लाइट को जो है इंक्रीज या डिक्रीज करने में जो है उसको, जो लाइट गुजरती है उस डायफ्राम में से, उसको कंट्रोल करता है कि लाइट ज़्यादा गुजरती है या कम गुजरती है. लाइट के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है. Another term is that is the condenser lenses. Condenser lenses are also used in the microscope. Condense means to condense the light. When the light comes from the illuminating source like this one, ये बल्ब है, ये बल्ब में से जब लाइट आ रही होती है तो वो क्या करता है, कंडेंसर उसको क्या करता है, लाइट जो है वो कन्वर्ट कर देता है. वो फॉर एग्जांपल एक स्पेसिमेन है तो लाइट इधर से इस तरह आ रही है, उस पहले कंडेंसर है, कंडेंसर उसको बाकायदा कन्वर्ट करके उसको बिल्कुल टिश्यू के ऊपर जो है वो डाल देता है. दैट इज कॉल्ड इज द कंडेंसर. इल्यूमिनेटिंग लाइट, द लाइट सोर्स, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं, illuminating source. We can also increase the intensity of light through the knob
बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे एक नोब है, इससे हम लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। So that was the all about the microscope.